નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી વિષય લઈશું ધોરણ બીજામાં. એમાં આપણે સોપાન 12 લઈશું. તો જુઓ, અહીંયા આપણને શેનું ચિત્ર આપ્યું છે? ગાયનું. તો ગાયનું ચિત્ર આપ્યું છે ને આપણે ગાય વિશે જ આજે સમજવાનું છે. ગાય વિશે જ આપણે જાણીશું. તો જુઓ, તો અહીંયા જોઈએ પહેલું વાક્ય, યહ ગાય હે. गाय एक पालतू जानवर है. गाय सफ़ेद, काली और चितकबरे रंग की होती है. इसके 4 पैर होते हैं. इसे एक लंबी पूंछ होती है. इसके सिर पर 2 सींग होते हैं. એટલે અહીંયા શું કહેવા માંગે? ગાય છે, ગાય એ પાલતુ જાનવર છે. તેનો રંગ સફેદ, કાળો અને ચિતકાબરી હોય છે. તેના 4 પગ હોય છે, એક લાંબી પૂંછડી હોય છે અને માથે 2 શીંગડા હોય છે. જુઓ, માથે 2 શીંગડા હોય છે. ગાયને લાંબી પૂંછડી છે અને ગાય આપણને દૂધ આપે છે. બરાબર ને? તો જુઓ, જોઈ આ રીતે. તો જુઓ, યહ ગાય હે. યહ એટલે આ ગાય છે. ગાય એક પાલતુ જાનવર હે એટલે ગાય એક પાળેલું પ્રાણી છે. गाय सफ़ेद, काली और चितकबरे रंग की होती है. गाय कया कया रंगनी होय छे? तो गाय सफ़ेद, काળી અને चितकाबर रंगनी होय छे. એટલે इसके 4 पैर होते હોય એટલે ગાયના કેટલા પગ હોય છે? 4. गायना કેટલા પગ હોય છે? 4. इसे एक लंबी पूंछ होती है એટલે ગાયને એક લાંબી પૂંછડી છે. ગાયને એક લાંબી પૂંછડી છે. इसके सिर पर 2 सींग होते हैं એટલે ગાયના માથે 2 શીંગડા હોય છે. गाय दूध देती है. गाय का दूध बहुत मीठा होता है. दूध से दही, छाछ, मक्खन और घी बनता है. गाय घास, चारा, दाने और भूसा खाती है. गाय को हम गौ माता कहते हैं. लोग इसकी पूजा करते हैं. તો ગાય શું? ગાય દૂધ દેતી એટલે ગાય આપણને શું આપે છે? દૂધ આપે છે. गाय का दूध बहुत मीठा होता है. बहुत એટલે વધારે. ગાયનું દૂધ ખૂબ મીઠું હોય છે. दूध से दही, छाछ, मक्खन और घी बनता है. और એટલે અને. તો ગાયના દૂધમાંથી શું બનાવવામાં આવે છે? તો ગાયનું જે દૂધ હોય તેમાંથી દહીં બને છે. દહીંમાંથી છાશ થાય છે, માખણ બનાવાય છે અને માખણમાંથી
ઘી બને છે. એટલે ગાયનું દૂધ આપણને આટલું બધું ઉપયોગી હોય છે અને ગાયનું દૂધ પીવામાં પણ હળવું હોય છે. गाय घास चारा दाने और भूसा खाती है. એટલે ગાય શું ખાવાનું ખાય છે? તો ગાય ઘાસ ખાય, ચારો હોય, દાણા હોય અને ભૂસું હોય છે તે ખાતી એટલે ખાય, હે એટલે છે. એટલે ગાય ઘાસ, ચારો, દાણા અને ભૂસું ખાય છે. गाय को हम गौ माता कहते हैं. लोग इसकी पूजा करते हैं. એટલે ગાયને આપણે શું કહીએ છીએ? તો ગાયને આપણે ગૌ માતા કહીએ છીએ. લોગ इसकी पूजा करते हैं. એટલે લોકો ગાયની પૂજા કરે છે. આગળ गाय के बच्चे को बछिया या बछड़ा कहते हैं. बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है. बछड़ी बड़ी होकर गाय बनती है. बैल खेती के काम आता है. यह हल खींचता है. गाय के बच्चे को बछिया या बछड़ा कहते हैं. એટલે ગાયના આપણે શું, ગાયનું જે બચ્ચું વાછર ગાયનું બચ્ચું હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? વાછરદું. શું કહીએ છીએ? વાછરદું કહીએ છીએ. ને એ વાછરદું બડા હો એટલે બછડા બડા હોકર બેલ બનતા હૈ. એટલે તે વાછરદું મોટું થાય ત્યારે બળદ બને છે. બછડી બરી હોકર ગાય બનતી હોય, વાછરદી હોય તો તે ગાય બને છે. બેલ ખેતી કે કામ મેં આતા હૈ. એટલે બળદ ખેતીના કામમાં આવે છે અને તે હલ ખીંચતા હૈ એટલે હળ ખેંચે છે. આખું વાક્ય શું કહેવા માંગે છે? કે ગાયના બચ્ચાને વાછરદી કે વાછરદું કહેવામાં આવે છે. જો વાછરદું હોય તો એ મોટું થઈને બળદ હોય છે અને વાછરદી હોય તો એ ગાય હોય છે. ગાય આપણને દૂધ આપે છે અને બળદ એ ખેતીના કામમાં મદદ કરે છે. એટલે કે હળ ખેંચવામાં, બળદ ખેતી કરવામાં આપણને ઉપયોગી છે. गाय के गोबर से उपले बनते हैं. गाय के गोबर से उपले એટલે છાણા જે जलाने के काम आते हैं. गोबर से आंगन और चौका लिपते हैं. गोबर से खाद भी बनती है. खाद खेतों में डालने से अनाज अधिक उत्पन्न होता है. गाय के चमड़े से जूते चंपल बनते हैं. हम गाय की सेवा करनी चाहिए. એટલે પહેલું વાક્ય જુઓ. ગાય કે ગોબર સે ઉપલે બનતે એટલે ગાયના છાણ, જે છાણ હોય એમાંથી ગોબર એટલે છાણ, ઉપલે એટલે છાણા બને. એટલે ગાયના ગોબર, ગાયના છાણમાંથી છાણા બનાવાય છે. એ છાણાને આપણે સળગાવીએ છીએ જેથી આપણે એની ઉપર જો ચૂલો બનાવ્યો હોય તો એ રાંધણ માટે ઉપયોગી થાય છે અને એના ઉપર આપણે છાણા બાળીને ઉપર રસોઈ કરી શકીએ છીએ. ગોબર એટલે કે છાણ, એમાંથી આપણે પોતાનું આંગણું અને લીપીએ છીએ. गोबर से खाद भी बनती है એટલે ગોબર એટલે છાણામાંથી ખાતર પણ બને છે. खाद खेतों में डालने से अनाज अधिक उत्पन्न होता है.
ખાતર ખેતરમાં નાખવાથી અનાજ વધારે ઉત્પન્ન થાય છે। गाय का चमड़े से जूते चंपल बनते हैं। गायना चामड़ामांथी चंपल अने बूट बनावाय छे। हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। आपणे गायनी सेवा करवी जोईए। फरी एक बार फक्त वांचन करी जोईए आपणे। यह गाय है। गाय एक पालतू जानवर है। गाय सफ़ेद, काली और चितकबरे रंग की होती है। इसके 4 पैर होते हैं। इसे एक लंबी पूंछ होती है। इसके सिर पर 2 सींग होते हैं। गाय दूध देती है। गाय का दूध बहुत मीठा होता है। दूध से दही, छाछ, मक्खन और घी बनता है। गाय घास, चारा, दाने और भूसा खाती है। गाय को हम गौ माता कहते हैं। लोग इसकी पूजा करते हैं। गाय के बच्चे को बछिया या बछड़ा कहते हैं। बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है। बछड़ी बड़ी होकर गाय बनती है। बैल खेती काम आता है और हल खींचता है। गाय के गोबर से उपले बनते हैं। ये जलाने के काम आते हैं। गोबर से आंगन और चौका लिपते हैं। गोबर से खाद भी बनती है। खाद खेतों में डालने से अनाज अधिक उत्पन्न होता है। गाय के चमड़े से जूते चंपल बनते हैं। हम गाय की सेवा करनी चाहिए। હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોઈએ। સ્વાધ્યાયમાં આપણે પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો। તો પહેલી ખાલી જગ્યા, ગાय एक खाली जगह जानवर है। तो गाय क्या है? तो गाय पालतू जानवर है। दूसरी खाली जगह, गाय का दूध बहुत खाली जगह होता है। तो गाय का दूध कैसा होता है? तो मीठा। गाय का दूध बहुत मीठा होता है। तीसरी, गाय की पूंछ लंबी होती है। એટલે ગાયની પૂંછડી લાંબી હોય છે। બરાબર ને? चौथो, बछिया बड़ी होकर खाली जगह बनती है। तो बछिया बड़ी होकर क्या बनती है? गाय। એટલે વાછરડું મોટું થઈને ગાય બને છે। પાંચમું, गोबर से खाली जगह भी बनती है। तो गोबर से क्या बनती है? खाद। खाद એટલે ખાતર, એટલે છાણમાંથી ખાતર બને છે। छठो, गाय को हम खाली जगह कहते हैं। तो गाय को हम क्या कहते हैं? गाय को हम गौ माता कहते हैं। નીચેની ખાલી જગ્યા આપણે ફરીથી વાંચન કરીએ। પહેલી, गाय एक खाली जगह जानवर है। तो पालतू, गाय एक पालतू जानवर है। दूसरी, गाय का दूध बहुत खाली जगह होता है, मीठा। तो गाय का दूध बहुत मीठा होता है। तीसरी खाली जगह, गाय की पूंछ लंबी होती है। गायनी पूंछड़ी लांबी होय छे। चौथो, बछिया बड़ी होकर खाली जगह बनती है। बछिया बड़ी होकर गाय बनती है। पांचवों, गोबर से खाली जगह भी बनती है, खाद। तो गोबर से खाद भी बनती है। छठो, गाय को हम खाली जगह कहते हैं। तो गाय को हम गौ माता
कहते हैं। આગળનો પ્રશ્ન, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ એક એક શબ્દમાં લખો। પહેલું, गाय के कितने पैर होते हैं? तो गाय के 4 पैर होते हैं। दूसरी खाली जगह, बछड़ा बड़ा होकर क्या बनता है? तो बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है। बछड़ा बड़ा होकर क्या बनता है? बैल। तीसरी खाली जगह, गाय के चमड़े से क्या बनता है? तो गाय के चमड़े से जूते चंपल बनते हैं। चौथा सवाल, उपले किस काम में आते हैं? तो उपले जलाने के काम में आते हैं। बैल किस काम में आता है? बैल खेती के काम में आता है। छठो, बैल क्या खींचता है? बैल हल खींचता है। फरी एक बार वांचन करिए। गाय के कितने पैर होते हैं? तो गाय के 4 पैर होते हैं। बछड़ा बड़ा होकर क्या बनता है? तो बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है। गाय के चमड़े से क्या बनता है? तो गाय के चमड़े से जूते चंपल बनते हैं। चौथा, उपले किस काम में आते हैं? उपले जलाने के काम में आते हैं। पांचवा सवाल, बैल किस काम में आता है? बैल खेती के काम में आता है। छठा सवाल, बैल क्या खींचता है? बैल हल खींचता है। तो जो આપણે ગાય વિશે આજે સમજી ગયા, જાણી ગયા, તો હવે આપણે ગાય ઉપરથી નિબંધ પણ લખી શકીએ છે। નિબંધમાં પણ આપણે જે અત્યારે શીખ્યા છે એ જ નિબંધમાં આપણે જે શીખ્યા છે એ જ આવશે, બરાબર ને? તો તમે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો એકવાર વાંચન કરી જજો અને યાદ રાખશો। નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો।